تقریر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین، سامعین اور اسٹیج پر رونق افروز مہمانان اکرام، اب تک ہمارے سامنے ہمارے انسپکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور لائر صاحب تینوں نے جو باتیں بتائی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ اپنے جان کی بھی حفاظت کرو، اپنے مال کی بھی حفاظت کرو، اپنے وقت کی بھی حفاظت کرو. اگر ہم اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت اور اپنے وقت کی حفاظت کر لیں گے تو جتنی ساری چیزیں اب ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں. پہلی چیز جان کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان دی ہے، ایسا نہیں کہ جان دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. کل سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس اس جان کا کہ ہم نے تمہیں یہ زندگی دی تھی، جان دی تھی، ایسی نعمتوں سے ہم نے نوازا تھا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ آج جو یہ نشہ اور چیزیں اور یہ جو سب ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس سے ہماری جان، ہماری صحت کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو رہا ہے. ہم اس کے اندر ایک بہت خطرہ ہمارے اندر محسوس ہو رہا ہے، ہماری جانیں جا رہی ہیں. اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ کل اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ میں اس کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ سب سے پہلے بچپن سے جو عادت پڑتی ہے، بچپن سے جو ہم دکانوں کے اندر چھوٹے بچے ہیں، سب سے پہلے وہ کیا ہے، وہ بامبے سپاری لے کر کھاتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے. راجو سپاری. اس کے بعد فوراً وہ کیا کہتے ہیں، راجا سپاری، وہ لے کر کھاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، بہت افسوس ہے کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہی میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بچہ ومل کھا رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا، چھوٹا بچہ ہے. میں نے پوچھا یہ کہاں ہے؟ ابھی تک میرے پاس وہ چیز موجود ہے. تو میں اس کے پاس وہ لے کر میں نے دیکھا تو وہ ومل نہیں ہے، چاکلیٹ ہے، لیکن اوپر جو اس کا کور بنایا گیا ہے ومل جیسا بنایا ہے، اندر چاکلیٹ ہے، چھوٹا سا ہے. ذرا بتاؤ، آج وہ چھوٹا ومل کھائے گا، کل جا کر وہ بڑا ومل حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بچپن سے یہ چھوٹی چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب وہ ومل کھانے لگا، اب اس کے اندر تھوڑا سا اس کو مزہ آنے لگا. اب اس کے بعد ہوتے ہوتے نشے کے اندر اتنا وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کی عادتیں چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. والدین بھی بیزار ہو جاتے ہیں، سوسائٹی والے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، محلے والے بھی بیزار ہو جاتے ہیں. نوجوان بچے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، اب وہ نکاح کے قابل رہی نہیں. اور بہت سارے طلاق کے، خلا کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اب اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہی اس کی وجہ آتی ہے کہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یہ میرے لائق نہیں رہا، اس کی مردانہ قوت ختم ہو گئی ہے، اس نے اپنی جوانی برباد کر دی ہے. ذرا بتاؤ، شادی کا مقصد ہی ہے. اگر شادی کرنے کے بعد اگر وہ اپنی بیوی کی ضرورت پوری نہیں کرے گا تو بیوی کہاں سے رکھے گی اسے؟ تو یہ بچپن سے نوجوان بچے آج کل جہاں پارک میں چلے جاؤ، یہاں ادھر اندر چلے جاؤ. ابھی ایک نوجوان رات کے تقریباً 11:30 بجے تھے، میں اپنے اس گلی کی بات کر رہا ہوں، کسی کام سے آنا ہوا، وہ نوجوان جا رہا ہے، نوجوان ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، وہ جا رہا ہے، 3 کتے اس کے اوپر ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا اور وہ لے کر اس کو اپنے اوپر چھوڑ رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے ان کو بھگانے لگا تو ایک صاحب کہنے لگے چھوڑا لو حضرت، ان کا روز کا بوجھ ہے، تو کیا وہ پیار پریوار اور گھر کو جاتش نہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شراب پیا. یہ اپنے جان کی حفاظت سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا، جس کو ہم مٹکا کہتے ہیں، جوا بھی کہتے ہیں، اور مٹکے کی کئی طرح کی قسمیں اب آ چکی ہیں، آن لائن بھی مٹکا آ چکا ہے. ایسے بھی گھر کے اندر کا پورا پیسہ سب کچھ برباد کر رہے ہیں، ہم لوگ سب کچھ برباد کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کمائی اچھی ہے، روزانہ کر، لیکن
पीछे इतना कर्ज है, इतना कर्ज है। कैसे कर्ज हुआ? मटका खेल कर सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तो अल्लाह फरमाते इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, वल मैसिरु जुआ, वल अंसाबु वल अज़लामु, और ये ज़माने जाहिलियत के दो खेल थे जिसके अंदर तीर छोड़े जाते थे, और वो ज़माने जाहिलियत के जो दो खेल थे, फरमाया रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान के खेल का एक हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया फज्तनिबूहु, तुम उससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये आयत नाजिल होने से पहले इस्लाम के अंदर शराब जायज था, शराब जायज था और बाकायदा शराब पी जाती थी। लेकिन चंद वाकयात ऐसे पेश आए कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, कुछ वाकयात ऐसे पेश आए कि जिसके अंदर नुकसान होने लगा। अल्लाह ताला ने इन आयतों को नाजिल किया। उसके बाद एक नुकसान ये भी हुआ कि शराब पीकर नमाज के अंदर शरीक हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमान वालो जब तुम नशे की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब भी मत जाओ। ये तमाम वाकयात हुए, आयतें नाजिल हुई। तारीख में लिखा है और सीरत के अंदर लिखा है कि सहाबा ने अपने शराब के मटकों को मक्का की गलियों, मदीने की गलियों के अंदर ऐसे बहाया जैसे एक सैलाब जा रहा है। तमाम सहाबा ने तौबा की और उसके बाद उसकी जो कबाहतें हैं, उसकी मजम्मतें बयान की गई। और आज भी कुरान और हदीस के जरिए से हमें यही बताया जाता है, फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशावर चीज हराम है। मेरे भाइयों, मुझे माफ कीजिएगा, आज हम दुकान रखकर, अपने दुकानों के अंदर विमल रखकर, अपने दुकानों के अंदर बीड़ी सिगरेट रखकर, अपने दुकानों के अंदर नशा की चीज रखकर हम तो बहुत कमा लिए, हमने बिल्डिंगें बन ली, हमने इमारतें बन ली, हमने गाड़ियां खरीद ली, लेकिन तुम्हें अफसोस होना चाहिए, तुमने हमारी कौम के बच्चों को बर्बाद कर दिया। थोड़ी चीज के लिए, थोड़ी कमाई के लिए, थोड़े पैसों के लालच के लिए। और आजकल वो दुकान चलता ही नहीं जिसके अंदर विमल ना हो, वो दुकान चलता ही नहीं जिसके अंदर बीड़ी सिगरेट ना हो। इस्लाम क्या कहता है? इसकी खरीदो फरोख्त मकरूह है। तो इसलिए सबसे पहली बात अपनी जान की हिफाजत, जान में नशावर चीजों का इस्तेमाल करना, नशावर चीजों के इस्तेमाल से बचना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खुसूसन हमारे नौजवान बच्चे, मैं आपको एक राय देता हूँ, एक मशवरा देता हूँ, आपसे वक्त नहीं निकल रहा है। आप जो है 9 से 10 बजे तक या 10 से 11 बजे तक, ये वक्त आपका काम में नहीं आ रहा है। यही ये वक्त होता है जब नौजवान बच्चे नशा इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक राय देता हूं, अगर आपका वक्त है सीधे मस्जिद पर आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ। ये 1 घंटा मस्जिद के अंदर गुजार दो, 1 घंटा कुरान की तालीम के अंदर गुजार दो, 1 घंटा कुरान पढ़ने के अंदर गुजार दो, इस्लाम की तालीमात हासिल करने के अंदर गुजार दो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। पहली चीज जान की हिफाजत। ये मैं एक खुलासा तमाम जो हमारे अहबाब ने बताया उसका खुलासा मैं बता रहा हूँ शरीयत की नजर में। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने तो माशाअल्लाह बहुत सारी बातें बताई और इसी को इस्लाम जान की हिफाजत से ताबीर करता है। और दूसरा माल की हिफाजत। जान की हिफाजत में हमारे सर ने जो बताया, एक्सीडेंट का होना, हेलमेट का नहीं पहनना और इसी तरह व्हीलिंग करना, ये भी जान की हिफाजत ना करने के बराबर है। अगर कोई व्हीलिंग करके मर जाता है, अगर कोई इसका इंतकाल व्हीलिंग करके अगर वो एक्सीडेंट की मौत में मर जाता है, तो वो अपनी जान की हिफाजत ना करने की बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पूछा जाएगा। ये उसकी जरूरत नहीं थी, ये व्हीलिंग करेगा, ये मरकर चला जाएगा। बताओ उसके बूढ़े माँ बाप का क्या हाल होगा, रो रो कर उनकी क्या हालत होगी। सर ने बताया बगैर हेलमेट के हमारे शहर के अंदर अभी तक माहौल नहीं बना है हेलमेट का। मैं भी बगैर हेलमेट के चलाता हूँ। अगर अभी माहौल नहीं बना है तो अब से हमें अमल करना चाहिए कि हेलमेट के साथ हम गाड़ी चलाएं। हमारी हिफाजत है, हमारी हिफाजत है। और दूसरा फरमाया माल की हिफाजत। माल की हिफाजत के अंदर सर ने बहुत सारी चीजें बताई।
फोन पे का फ्रॉड है, गूगल पे का फ्रॉड है और इसी तरह बहुत सारे। इसके अंदर बताया गया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला युल्दगुल मुमिनु मिन हुज्रि मर्रतैन, मुमिन 2 सुराख से एक मर्तबा धोखा नहीं खा सकता। एक मर्तबा धोखा खा लिए फौरन समझ जाना चाहिए। अपने माल की हिफाजत, चोरी के बारे में सर ने बताया, अपने माल की हिफाजत अपने घर के अंदर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आज ये तमाम चीजें जो पेश आ रही हैं ये बेरोजगारी की वजह से पेश आ रही हैं। रोजगारी नहीं है, सुबह से शाम तक कुछ कमाता नहीं है। अब घर के अंदर थोड़ा उसके ऊपर जुल्म हुआ, थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि कुछ लाना है, अब वो चोरी के लिए निकल गया। इसलिए एक चोरी करना तो एक बड़ा बुरा और कभी अमल है ही, लेकिन उससे पहले अपने माल की हिफाजत करना, अपने घर के अंदर अपनी चीजों की हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा, अपने वक्त की हिफाजत करना है। वक्त की हिफाजत के ताल्लुक से हमारे सर ने बताया सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि हाथ में मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया आ गया, गूगल पे, यूट्यूब के अंदर और इसी तरह इंस्टाग्राम के अंदर, ट्विटर के अंदर, फेसबुक के अंदर जो कुछ आया पोस्ट कर रहे हैं। ना आगे देखा ना पीछे देखा, ये क्या है, ये क्या मैटर है, कुछ भी नहीं देखा, पोस्ट करते जा रहे हैं। और उसका इस्तेमाल, वक्त मिला तो हाथ में मोबाइल आ गया और उसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इजाजत है। सही चीजों के लिए करो, गलत चीजों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करो। आज के जमाने के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ताकत है। एक बात किसी को पहुंचाना है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, मिनटों में हजारों लाखों करोड़ों लोग देख लेंगे। तो हालांकि इसका इस्तेमाल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन सही चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर हमने इसका गलत इस्तेमाल किया, यूट्यूब का गलत इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल किया, इंस्टाग्राम का गलत इस्तेमाल किया, एक तो अपना वक्त जाया होता ही है, अपने वक्त का जाया होता है, लेकिन हुकूमत की गिरफ्त में आएंगे। जैसा कि बताया कि डाटा, हर एक चीज उनके पास महफूज है, वो हम कहीं भी जा नहीं सकते, हमारा डाटा कहीं भी नहीं जा सकता। जरा जरा करके वो जो है हमारे पास ला करके, बस ज्यादा वक्त लेना मैं नहीं चाहता, बस तमाम हमारे डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी अहम बात बताई कि हमारे शहर के अंदर इसका एक सेंटर डॉक्टर साहब जो है या खोल रहे हैं या अभी खोलने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, वरना तो बेंगलुरु जाना पड़ता था। बेंगलुरु के पास नशामुक्ति वहाँ सेंटर से वाला ले जाकर बहुत सारों को हमने भी भेजा है, हमने भी छोड़ा है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अगर हमारे शहर के अंदर ये सेंटर शुरू हो रहा है, हम मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर साहब को। और इसी तरह जो बातें तीनों अहबाब ने बताई उसका खुलासा मैंने आपके सामने बताया। अपने जान की हिफाजत करो, अपने माल की हिफाजत करो, अपने वक्त की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। मैं मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज को याद किया, कुछ बातें बताई। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। असदुल्लाह साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं।